बहुत ही एक विशेष शब्द है जो हम सबकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। हम सब ने ये कहावत सुनी ही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, या सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। तो हम सब लोग इसके महत्व को जानते हैं। किसी भी दिन को, किसी भी कैंपेन को, किसी भी वीक को मनाने का ये अर्थ नहीं होता है कि पूरे साल हमें उसे नहीं मनाना है या उसको ध्यान में नहीं रखना है। ये सब द्योतक है इसके आपको याद दिलाने के लिए कि जो अंदर कहीं अंतःकरण में बैठा है उसे बाहर लाइए, अपनी जीवनी में उसे उतारिए। तो इसी श्रृंखला में हम 3 महीने का ये कैंपेन CVC ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है कैरी आउट करने के लिए, जिसमें हमें सबको अवेयर करना है। इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन हम आज कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इसके बारे में सबको अवगत कराया है एक सर्कुलर के थ्रू, और आज हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं। हट जाएगा कैमरा घुमाना होता है। में बैठे सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं स्वागत करती हूँ। और जैसे कि हमारी परंपरा है, शुरुआत हम करते हैं दीप प्रज्वलन से, जो हमारी जिंदगी में रोशनी लाए। और विजिलेंस का भी यही मुख्य उद्देश्य यही है कि अंधेरा हटे और उजाला बढ़े। मैं रजिस्ट्रार सर, डीन ऑफ कॉलेजेस, डायरेक्टर ऑफ कैंपस और FO सर को रिक्वेस्ट करूंगी दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए। धन्यवाद। कैमरे के आगे मत आइए। धन्यवाद। मैं अब सभी उपस्थित लोगों से आग्रह करूंगी कि खड़े हो राष्ट्रीय गान के लिए। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर बालराम पानी सर, डीन ऑफ कॉलेजेस से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस विषय पे अपने भाव रखें। धन्यवाद। Good morning to you all. On the dais, Professor Sri Prakash ji, the Director South Campus, Dr. Vikas Gupta ji, the Registrar of this University, and Mr. Girish Ranjan ji, the FO
of this university. And dear colleagues and friends, today it is all about the preventive vigilance measures. Means from the statement itself, means you will have to take some preventive measures. Means what type of preventive measures? Means everything it is there. It is only the conscience of the individual. If the conscience is that, okay, means I will have to go, I will have to follow these rules and regulations, then it is okay. Means it is only the conscience which will give the preventive. Means it is yourself. So what you are doing, it doesn't matter. But besides you, means with whom you are also going, means if something is happening in your knowledge, if your knowledge that okay, somebody else, means if yourself you are doing the right thing, but surrounding you, if somebody is doing something wrong, then you could have advised him that okay, these are the rules and regulations, and you will have to follow all these things. Means by that way, you will have to rectify all these things. So these are the preventive measures. Means what the rules and regulations, everything it is on the paper. Means in which way you are interpreting all these things, that depends. Means whenever it is saying that okay, it is the great thing. Great thing means it is the positive manner, you will have to interpret all these things and you will have to do, and it is after all. Means you will do something wrong, who is going to be affected? Means our society, our nation will be affected. No, not an individual will be affected. So therefore, we all together, means besides you, your neighborhood and wherever you are working or wherever you are moving, and everybody, means you will have to take some preventive measures so that everybody will go in the right direction, and if you will go in the right direction, then I am sure nothing will be wrong. And if you will take some preventive measures, means there are so many parameters. If you will say that for the measuring preventive measures, what are the parameters? Parameters it is already defined, and the guidelines have already been given. But only thing is that it is your conscience. Means the supreme conscience is the supreme. And if you think that okay, if my nature, behavior and character is good, then I will not do, or I will not allow to do anything wrong, whichever is involved with me. Then definitely this type of preventive vigilance measures, and this is the vigilance, means you will be very, very attentive, all these things, and we are doing so. If knowingly or unknowingly, means generally knowingly it doesn't happen, but unknowingly if it is there, then still we will have to take some cautions. And definitely I am sure we all are doing so. And again, if there is any, then we will have to take some precaution measures so that everything will be rectified. Means whosoever is doing, then definitely there is, means if somebody is not doing anything, what type of preventive measure you will take? He or she will take. Only when you are doing something, if something means not unknowingly, if something is going wrong in wrong direction, then we can rectify it, no problem. Means these are the preventive measures. So you have invited me. I'm thankful to you all. Again, I say good morning to you all. थैंक यू सर ने बहुत अच्छी बात की कि हमें अपने कॉन्शियसनेस पे ही ध्यान देना पड़ेगा, वहीं से शुरुआत होती है। बाकी तो अपने कर्म को हमें ध्यान देना ही है और कर्म करना जरूरी है। अकर्मण्यता कभी भी सतर्कता नहीं हो सकती है। कर्म करना ही सतर्कता के साथ हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जब हम कर्म करते हैं, अच्छी सोच के साथ करते हैं, तो ज़्यादातर वो सही दिशा में जाता है। जब सोच गलत होती है, तब शायद किसी करेक्टिव मेजर की ज़रूरत पड़ती है। हमें अपने कॉन्शियसनेस में, अपने अंतःकरण में इन सब बातों का ध्यान रख के आगे बढ़ना है, अपने कर्म को पूरा करना है, ताकि हम विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों पे, जिस ऊंचाइयों पे हमारा देश चाहता है हमारा जाए, हमारे वाइस चांसलर साहब चाहते हैं हमारा जाए, हमारे स्टूडेंट्स जिस ऊंचाई पे चाहते हैं जाए, हम खुद जिस ऊंचाई पे चाहते हैं विश्वविद्यालय जाए, तो इसके पहिए हम ही लोग हैं। इसके पहिए हम सभी लोग हैं जो हम यहाँ काम करते हैं, चाहे वो टीचर्स हो,
चाहे वो स्टूडेंट्स को भी अपना योगदान देना जरूरी है। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर श्री प्रकाश जी को रिक्वेस्ट करूंगी अपने भाव रखें। धन्यवाद। धन्यवाद मीनाक्षी जी। मैं तो बगैर किसी तैयारी के आया, सोचा ये था कि वीसी साहब रहेंगे, बोलेंगे, हम सब सुनेंगे। एनीवे, धन्यवाद। प्रोफेसर बलराम पाणी जी, डॉक्टर विकास गुप्ता जी, गिरीश रंजन जी, प्रोफेसर ए.के. सिंह जी, प्रोफेसर संजीव सिंह, प्रोफेसर रवनीत गांधी, प्रोफेसर निरंजन जी, प्रोफेसर नीराग्नि मित्रा जी, राजेश सिंह जी, प्रोफेसर श्यामारथ और विश्वविद्यालय के जान प्राण सभी साथियों, मैं सोच रहा था कि मीनाक्षी जी ने कुछ शब्द इतने अच्छे बोले, अगर उन्हीं की व्याख्या कर दी जाए तो सतर्कता किसके लिए, क्यों, अपने आप व्याख्यायित हो जाती है। जैसे अभी आपने कहा, अकर्मण्यता के लिए सतर्कता की आवश्यकता नहीं होती। आप जरा अपने बचपन को सोच करके देखें तो प्रायः कहा जाता है बड़ा कर्मठ है। ये कर्मठ शब्द हम अपने व्यवहार से, अपने आचार से और अपने कृतित्व से हासिल करते हैं। कर्मठ शब्द ऐसे नहीं कहा जाता किसी को। तो हम सभी के लिए एक तो ये शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कि बहुत कर्मठ है, और कर्मठ व्यक्ति ही योग्य होता है। अकर्मण्य व्यक्ति के साथ समाज कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करता, उसको यहां से बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो योग्य होता है वही कर्मठ होता है, जो कर्मठ होता है वही योग्य होता है, और निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ वही व्यक्ति बढ़ता है। तो हम सभी उस कर्मठता की तरफ चलें, ऐसा भी भाव बोध आज के कार्यक्रम का है। हम सभी जिस रूप में भी हो, परिवार में हो, समाज में हो, नौकरी स्थल पर हो, कार्यस्थल पर हो, हम सभी जब भी कोई कार्य करते हैं तो कुछ शब्द हमारे दिमाग में हमेशा रहते हैं, और ये शाश्वत प्रक्रिया है। मोरल और इमोरल, चेतन व अवचेतन। बलराम जी कह रहे थे कॉन्शियस पर प्रयास होना चाहिए। ये कॉन्शियसनेस है क्या? यह चेतन और अचेतन का एक संघर्ष है। हमारी जो एस्पिरेशंस होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स दे आर ड्राइव्ड बाय द अवचेतन, और ये अवचेतन जो होता है वो रियलिज्म से बहुत दूर होता है, यथार्थ से बहुत दूर होता है। तो चेतन बार बार आगाह करता है, जिसे हम आत्मा की वृत्ति भी कहते हैं, उसकी आवाज भी कहते हैं। वो बार बार हमको आगाह करता है कि नहीं, यह उचित नहीं है, यह संभव नहीं है, और यह हम सबके साथ होता है, irrespective of caste, community, creed, religion, belief and age। ये सबके साथ होता है। हमारा चेतन मन जो है बार बार हमको आगाह करता है। आवश्यकता किस चीज की है? उस चेतन मन को, उस चेतन तत्व को याद करने और उसको महत्व देने की है। और यदि हम उस चेतन को महत्व देने लगे तो फिर हमको किसी सतर्कता अभियान की या उसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
तो हम सभी को जो हमारी अंतरात्मा की आवाज है उसको सदैव जीवित रखना चाहिए, उसको सदैव प्रवाहमान करना चाहिए, जिससे हमसे भूल से भी कोई गलती ना हो। और जो मैंडेट जिस पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, 3 महीने तक जिस पर कार्यशालाएं आयोजित होंगी, बहुत क्लियरली कुछ कुछ चीजें डिफाइन करता है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, अपडेशन ऑफ गाइडलाइंस, डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स आउटस्टैंडिंग, ये सब हमारी कर्मठता के कारक हैं। और जो लाभ की वृत्ति होती है उसको रोकने की भी कारक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मीनाक्षी जी के नेतृत्व में ये जो कार्य चला है बहुत सफलता से पूरा होगा। और जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ ये शब्द जीवन में हमेशा हम याद रखें, नैतिक, अनैतिक, चेतन, अवचेतन और अंतरात्मा की आवाज। तो हम बहुत सारी गलतियों से स्वयं ही बचते हैं। और अंत में पुनः वो बात दोहराते हुए जो मीनाक्षी ने कही थी, अकर्मण्यता के लिए सतर्कता की आवश्यकता नहीं होती। इस नाते हम सब कर्मठ बने और अपने दायित्व को समयबद्ध रूप से पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सारा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतःकरण और चेतना का जो महत्व है सर ने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया। आज सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के सामने मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हमारे लिए ये खुशी की बात है और सौभाग्य की बात है। बहुत दिनों बाद हमारे रजिस्ट्रार ने सीवीओ का चार्ट संभाला है और इस चीज़ का इतनी हिम्मत शायद पहले जुटा नहीं पाए लोग। अलका शर्मा मैडम थी, उनके बीच में जो हमारे रजिस्ट्रार थे वो शायद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमें इसके लिए हमारे विकास गुप्ता सर रजिस्ट्रार का बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके नेतृत्व में हम जितना अच्छे से काम कर पा रहे हैं, कर सकते हैं कि नहीं कह रहे, उतना अच्छा शायद हम पिछले कुछ सालों में नहीं कर पाए थे। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद सतर्कता अपने आप आ गई है, क्योंकि थोड़े थोड़े दिन पे सर हमें सतर्क करते रहते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा कोई और कलीग हो, सुनना पड़ता है हम सभी लोगों को। और ये सतर्कता अपने आप ही हम लोगों में आ गई है। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगी फॉर्मल अपना इनॉग्रल एड्रेस दें एज सीवीओ ऑफ द यूनिवर्सिटी। थैंक यू। परम आदरणीय प्रोफेसर बलराम पांडे जी, डीन ऑफ कॉलेजेस, प्रोफेसर श्री विकास सिंह, डायरेक्टर साउथ कैंपस, मेरे साथी श्री गिरीश रंजन जी, संयुक्त कुल सचिव सतर्कता मीनाक्षी जी, हेड्स, डीन्स, distinguished guests, other teachers, my colleagues, and my able administrative staff. Good morning to all of you. मेरा काम काफी सरल कर दिया प्रोफेसर बलराम पानी जी ने भी और प्रोफेसर श्री प्रकाश जी ने भी। मैं सोच रहा हूँ, ये कह रहे कि मैं तैयारी करके नहीं आया था, अगर ये तैयारी करके आते तो क्या क्या बोलते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन हमें करना पड़ा क्योंकि एक भारत सरकार के निर्देश आए कि इस कार्यक्रम का आयोजन करो। और इसको मैं लिंक करता हूं कि हमारे वाइस चांसलर साहब कई बार एक बात बोलते हैं कि हमारे देश में हमारे लोगों को सोने की बड़ी आदत है। हम बहुत जल्दी सो जाते हैं, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। शायद ये कार्यक्रम उसी कड़ी का है कि जो बार बार हमें याद दिलाता है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स हमें लेने हैं, किस तरीके से हमें स्टेप्स लेने हैं। मैं ये नहीं कहता कभी भी कि हम जानबूझ के कुछ गलत करते हैं। मैं ये मानता हूं कि हम काम करेंगे, हमसे गलती होगी,
और कई बार जब चर्चा होती है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं एफिडेविट देने को तैयार हूं कि मुझसे काम मत करवाओ तो मुझसे गलती नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या स्टेप्स हमें लेने की जरूरत है, क्यों चीजें याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। बहुत छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। हमें क्यों जरूरत पड़ती है एक ऑर्डर निकालने की, हमारा ऑफिस का टाइम 9 बजे का है और शाम 5:30 बजे तक है। क्यों मुझे जरूरत पड़ती है ये कहने की कि लंच टाइम आधे घंटे का है। शायद अच्छा नहीं लगता मुझे ये कहते हुए जॉइंट रजिस्ट्रार नॉन टीचिंग को कि प्लीज ऑर्डर निकालो। मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि जब मैं AR DR JAS को कहता हूं कि आप लोग चेक करो, मैं क्यों कहूं इनको कि ये चेक करो। क्यों ये लोग खुद चेक नहीं कर सकते। ये भी एक छोटी सी चीज है विजिलेंस के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को मानने के लिए। कई लोगों ने मुझे कहा बहुत जल्दी आ जाते हो, पहले लोग नहीं आते थे। मैं जल्दी इसीलिए आता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि कल को ये कहे जी ये सब लोग लेट आते थे, ये लोग लेट आते हैं और हमें जल्दी बुलाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे मैंडेट हमें दिए, कई सारी चीजें हमें दी कि हमें क्या चीज कैसे करनी है। ये जो 3 महीने का कार्यक्रम है, आज हमारे वक्ता हमने रखे हुए हैं, हमारे अपने साथी हैं जो बताएंगे। दूसरा उदाहरण उस चीज में देता हूं, हमारी कितनी प्रॉपर्टीज है, जैसे से बताया ना प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का और एसेट्स का। कुछ सूचनाएं मुझे मिलती हैं, कुछ मैं जानता हूं, कुछ मैं देखता हूं। मैंने ज्वाइन करने के बाद सबसे पहली चीज सोची कि हमारी प्रॉपर्टी के जितने भी कागजात हमारे पास हैं उसके लिए एक सेफ वॉल्ट ली जाए। और चाहता तो मैं था 3 जनों की जिम्मेवारी इसमें लगाई जाए कागजों में रखने के लिए, जॉइंट रजिस्ट्रार स्टेट की, स्टेट ऑफिसर की और रजिस्ट्रार की। लेकिन पता चला कि चाबियां ही 2 आई हैं उसके अंदर। वो आने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद शायद आज तक वो कागज उस स्थिति में उस वॉल्ट में नहीं रखे गए, क्योंकि अगर वो रखे जाते तो शायद वो रजिस्टर आज मेरे पास आ गया होता जहां पे मैं देख सकता मेरी कितनी प्रॉपर्टी कहां कहां है। ये एक मैंडेट फिर आया है जो आज से लगभग 1 साल या 1.5 साल पहले मैंने कहा था कि हमें सेफ वॉल्ट लेनी है, हमारे कागज वहां रखे हों कि कागज जब बाहर आए तो दो के सिग्नेचर से बाहर आएंगे और वापस जाएंगे तो वहां पे रिकॉर्ड होगा कि उन्होंने वापस रखे हैं कागज। क्योंकि अलग अलग तरीके की सूचनाएं मिलती हैं, अलग अलग तरीके के लोग व्याख्याएं करते हैं, लेकिन शायद वो कार्य अभी भी अधूरा है 1 साल होने के बाद। अच्छा है कि वो टॉपिक आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मैंडेट बना दिया है। इसी कड़ी में हमारे एसेट्स की बात चलती है, हमारे एसेट्स का भी रिकॉर्ड कि कौन सा किसके पास है, क्या किसके पास है, कैसे है, कब से वो उसने ऑक्युपाई कर रखा है, लीगली ऑक्युपाई कर रखा है, इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है। हम एक आसान ट्रैक ले लेते हैं कि हमारे पास मैन पावर कम है। मैं मानता हूं मैन पावर कम है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं इतनी कम भी नहीं है कि हम अपने रेगुलर वर्क्स को नहीं कर सकते। उसी कड़ी में आगे आता हूं रिकॉर्ड मैनेजमेंट का। हमने कई सारे इनिशिएटिव लिए टुवर्ड्स रिकॉर्ड मैनेजमेंट आल्सो कि व्हाट आर द थिंग्स वी शुड डू। और हम लोगों ने कोशिश करी कि जितनी चीजें हमारी ऑब्सोलीट हैं वो निकले यहाँ से, साफ हों, तभी हम नई चीजें अच्छी ला सकें। और रिकॉर्ड का टाइम पीरियड हमने दोबारा से डिफाइन करा, खासतौर से मीनाक्षी जी ने एक इनिशिएटिव लिया अपनी ब्रांच को लेके कि कब तक पुराने रिकॉर्ड वो रखेंगे। हमने उसके ऊपर भी गाइडलाइंस बनाई एंड वी आर डिस्पोजिंग ऑफ दोज रिकॉर्ड्स। कई ब्रांचेस में रिकॉर्ड भरे हुए हैं, हमें पता ही नहीं है क्या रिकॉर्ड है क्या नहीं, क्योंकि हम खोलते ही नहीं। ये हर जगह होता है, ये हमारे साथ घर में भी है, हमारे चीजें पड़ी हुई हमें पता ही नहीं चलता, जब वो खराब हो जाती है तब पता चलता है क्योंकि हम देखते नहीं चीजों के लिए। सो दीज आर द स्टेप्स वी शुड टेक रेगुलरली कि व्हाट आर द थिंग्स
which have become obsolete, which are of no use, कि क्या हम उसका डिजिटाइज वर्जन कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट ने एक पैरामीटर दिया, व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स। आप लोगों को खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा, शायद दुख भी होना चाहिए। खुशी इसलिए कि समर्थ नाम का एक पोर्टल बना जो भारत सरकार ने फंडिंग करी, और वो प्रोजेक्ट पूरा हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजीव सिंह जी को दिया गया, जिन्होंने उसको डेवलप करा। काफी सारी यूनिवर्सिटीज में इंप्लीमेंट हो गया, हमने मीटिंग भी करी, अभी तक वो पूरा सुचारू रूप से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। क्या हम इसको लेके कोई डेडलाइन ले सकते हैं? क्योंकि कई परिस्थितियां, कई चीजें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन इंप्लीमेंट तो करो, होने दो गलत, ठीक करेंगे, एक स्टेप तो आगे चलो, उससे कई चीजों की आसानी हो जाती है। आज की डेट में हमारे एग्जामिनेशन के मैक्सिमम प्रोसेसेस ऑनलाइन है, हमारा माइग्रेशन पे काफी ऑनलाइन हो गया है, लेकिन बाकी ब्रांचेस क्यों वो स्टेप नहीं ले पा रही? एंड ये चीजें जब ऑनलाइन आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली दे विल गाइड यू, दे विल हेल्प यू इन डिस्चार्जिंग योर ड्यूटीज, विच ऑलमोस्ट विल बी एरर फ्री, और अल्टीमेटली वो दैट विल टेक केयर ऑफ योर विजिलेंस एस्पेक्ट्स ऑल्सो, कि आप कोई चीज अनजाने में भी गलत नहीं कर पा रहे हैं। कई चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया, आज के हमारे वक्ता हैं, हर टॉपिक को लेके वी हैव आइडेंटिफाइड द पर्सन एंड दे विल गाइड यू अबाउट ऑल दोस थिंग्स, कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी शुड ऑब्जर्व, हाउ वी शुड टेक स्टेप्स, हाउ वी शुड रिजॉल्व आवर इश्यूज। So you will come to know that it is very easy, but we have to take that initiative to achieve those objectives. मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आज हमारे साथ आए। ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक के अंतर्गत एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जो 3 महीने तक चलेगा। लास्ट में जो एक सप्ताह होगा वहां पे विजिलेंस के एक ओथ भी होती है कि वी टेक दैट ओथ, एवरीबॉडी टेक दैट ओथ, वी विल ऑब्जर्व सर्टेन पैरामीटर्स, वी विल नॉट डू एनीथिंग which is not in the interest of our institution. So that will be the culmination of the program on that day. But culmination of the program is one aspect. Continuation of the vigilance awareness activities. That we will do all our activities with sincerity, with honesty, with dedication. That is what is required. So my best wishes to all of you and thank you so much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें अवगत कराने के लिए कि कहाँ कहाँ हमें और मेहनत करने की, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रुकने की बिल्कुल सोचना भी नहीं है, आगे बढ़ना है, और किस तरह से हम आगे बढ़ सके वो हमें खुद डिसाइड करना है। पैरामीटर्स ऑलरेडी लेड हैं, हम लोग डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स बन रहे हैं, रिक्रूटमेंट, एग्जामिनेशन, ये सारे काम हो रहे हैं, एडमिशन सब हम यूनिवर्सिटी हमारी जो है ऑनलाइन एडमिशन्स पूरा कर रही है, एडमिशन से लेके एग्जामिनेशन तक सब ऑनलाइन है। बस हम कहाँ कहाँ उस व्हील में किसी भी बड़ी